Good morning, dear students. Today our topic of study is morphology of flowering plant. So we studied about the flower, that is the modified shoot which is developed from the stem of the tree. Flower may be produced single or in a group. Single flower are called solitary flower and the group of flower is also known as the inflorescence. Inflorescence pattern reproductive branch is called peduncle and the natural group of flower produced on a peduncle is called inflorescence. So inflorescence say that the group of flower in a tree. The arrangement of flower in a tree is called inflorescence. What is the significance of inflorescence? Flower attract the pollinator for pollination of the plant. Flower provide nectar, fragrance and the place of deposition of ova of the pollinator. And first of all, the identification and classification of the flowering plant is mainly based on the structure of flower or fluorescence. So this is pollinator and this is the plant. So that is the relation is called plant pollinator relationship. Then second, the types of inflorescence. The flower in a tree or in a plant arranged in two types. First is racemose, another is cymose. Racemose, that means there is no limit because they are indefinite manner. The flower are arranged in a branch in indefinite manner and flower are born laterally in acropetal succession. Older flower are at base and younger flower are at top. So this is called racemose inflorescence. This is the structure of racemose, or another name is racemose is called centripetal flower. Old open at first and young are in center and mature later. These are the old flower and these are the new ones. So this is the racemose type of inflorescence. The second is called cymose. इसे शशि माक्षी भी कहते हैं. ये definite growth में होते हैं because apical bud is converted into flower. Decipetal first form and old is terminal. लेटर और यंग लोअर स्टेज में रहते हैं. फ्लावर सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग होते हैं. यंग फ्लावर पहले ओपन होते हैं, ओल्ड फ्लावर बाद में. एग्जाम्पल है जैस्मिन, क्लेडोरॉन. दीज आर द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. एक जगह पे जाके टर्मिनल हो जाते हैं, आगे कोई भी फ्लोरिंग नहीं होगी, टर्मिनल हो गए, कोई फ्लोरिंग नहीं होगी, देयर इज नो फ्लोरिंग. सो दीज आर कॉल्ड साइमोस type of inflorescence. The third is the flower. The definition of flower: highly modified stem is called flower. This is the condensed form. When we see the flower of rose flower are the condensed form of flower. They are the reproductive structure which are originated for or modified. Shoot is modified for reproduction. So the flower is a stem. This is modified for reproduction. Parts of flower. A flower like vegetative shoot may develop in the axil of a small leaf called bract. जिन फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट होता है उनको ब्रैक्टिएट कहते हैं और जिनमें ब्रैक्ट नहीं होता उनको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं. यहाँ ध्यान से देखिए. These are the ब्रैक्टिएट फ्लावर. यहाँ पर रोज है ब्रैक्टिएट फ्लावर और ये बोगनविलिया ब्रैक्टिएट फ्लावर है. आपका चाइना रोज ब्रैक्टिएट फ्लावर है और ई ब्रैक्टिएट ये रहते हैं माइमोसा. दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो बबूल है, माइमोसा है, इनमें ये जो फ्लावर रहते हैं वो ई ब्रैक्टिएट रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का ब्रैक्ट नहीं होता. ब्रैक्ट किस तरह से दिखाई देता है? ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फ्लावर के नीचे, ये ग्रीन कलर किस तरह के ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रैक्ट. तो ये जिन फ्लावर में ये होते हैं उनको ब्रैक्टिएट और जिनमें नहीं होते वो ई ब्रैक्टिएट कहलाते हैं.
फ्लावर दो प्रकार के और होते हैं, पेडिसलेट और सेसाइल। जब फ्लावर में ब्रंथ पाया जाता है, ये पेडिकल पाया जाता है, फ्लावर पकड़ने के लिए स्टॉक पाया जाता है, दे आर कॉल्ड पेडिकुलेट फ्लावर। और जिन फ्लावर में ये ब्रंथ नहीं पाया जाता, नो पेडिकल, दे आर कॉल्ड सेसाइल। ठीक है, और ये एकाइरेंथस फ्लावर में ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, इसको लटजीरा या चौलाई भी कहते हैं। और ये आपका चाइना रोज है, विस्कस में पेडिसलेट फ्लावर है। और ये जो एकाइरेंथस जो है वो सेसाइल फ्लावर है, जिसे लटजीरा या चौलाई भी, बथुआ भी कहते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देखिए, 4 हिस्सा हैं। पहला है कैलिक्स, इसे सेपल्स भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ये पेडिकल होता है, जिससे फ्लावर को हम पकड़े रहते हैं। दूसरा है कोरोला, इसे पेटल्स भी कहते हैं। ये अलग अलग कलर का होता है। यदि ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है तो ये रेड, ठीक है, येलो, पिंक कलर का रहेगा। और यदि ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर है तो ये वाइट कलर का रहता है। थर्ड है पिस्टिल, जिसको फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं। और फोर्थ है स्टेमन। पिस्टिल में 3 चीज़ें हैं, एक स्टिग्मा टॉप वाला हिस्सा है, स्टाइल मिडिल पार्ट है, और ओवरी जिसके अंदर छोटे छोटे ओवा भरे रहते हैं। फोर्थ पोर्शन है स्टेमन। स्टेमन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एंथर जिसमें पोलन ग्रेन रहते हैं, और फिलामेंट जिसके द्वारा ये पुष्प से जुड़ा रहता है, फ्लावर से जुड़ा रहता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। जो बेस होता है फ्लावर का, सोलन पार्ट, उसको थैलमस कहते हैं। ठीक है, और थैलमस से एक चक्र निर्मित होता है। इस चक्र में 4 चीज़ें होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम जिसे हम एंथर भी बोलते हैं, और चौथा है गाइनोसियम जिसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं। ये एक ही नाम है, याद रखिएगा। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ द 4 व्हर्ल ऑफ द फ्लावर, कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड एसेसरी व्हर्ल। ये सहायक व्हर्ल रहते हैं, कैलिक्स, करोला। और मेन जो रहते हैं वो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम को मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं, और गाइनोसियम जो है वो ये एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम ये मेल पोर्शन है, और गाइनोसियम जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। किसी किसी पौधे में दोनों फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और केवल एक ही मेल या फीमेल अकेला है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जो कि पपाया, कोकम्बर, कुकरबिट्स में रहते हैं। क्या क्या काम करते हैं? कैलिक्स को सेपल्स कहते हैं, कोरोला को पेटल्स कहते हैं, एंड्रोसियम को स्टेमन और गाइनोसियम को कार्पल कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर कोई भी एक चक्र जो है वो एब्सेंट रहता है। 4 में से कोई एक एब्सेंट रहेगा तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ये कैलिक्स ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लोरल फार्मूला यदि हम बनाएं तो वो इस तरह से बनता है। ये कैलिक्स हैं, ठीक है, इनको के से शो करते हैं, कोरोला को सी से शो करते हैं ये, और एंड्रोसियम ये येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, और गाइनोसियम ग्रीन कलर के आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये 4 स्ट्रक्चर हैं कंप्लीट फ्लावर के। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके बारे में बात की गई थी, हैविंग ओनली 1 फंक्शन, सेक्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल या फीमेल। इसके एग्जाम्पल है कैस्टर, ठीक है, कैस्टर में और पपाया में और कोकरबिट यानी कद्दू फैमिली में ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है। गेंदा है, गुलाब है, चाइना रोज है, इन सब में बाइसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं। मेल अकेला फ्लावर रहेगा तो स्टेमिनेट कहेंगे, फीमेल अकेला रहेगा तो पिस्टिलेट कहेंगे। ये फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाते हैं। ये पिस्टिलेट फ्लावर हैं जिनमें कोकुम्बर के, जिनमें ककड़ी और खीरा ये इस तरह से लगते हैं। और ये स्टेमिनेट मेल फ्लावर है, केवल एंथर लगेंगे, इनमें कभी भी फल नहीं लगेंगे। इस तरह से ये पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट की बात करें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की तो मोनोशियस में मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, पाइनस फैमिली में है। और डायोसियस की बात करें तो मेल और फीमेल कैनबिस स्पीसीज में आर सेपरेटेड ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। ये साइकस में भी ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों एक में ही हैं, ठीक है। वो था जो है वो एक ही प्लांट के अंदर है तो मोनोसियस कहलाएंगे। 2 में है तो डायोसियस,
ये साइकस में ये स्थिति पाई जाती है। डायोसियस प्लांट में कंडीशन वेयर द मेल फ्लावर आर बोर्न ऑन मेल प्लांट एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन फीमेल प्लांट। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे साइकस में। ठीक है। पॉलीगेमस फ्लावर बाइसेक्सुअल, स्टेमिनेट और न्यूट्रल, यानी इनमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हिस्से रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री। यदि फ्लावर पूरी तरह से लगातार 4 भागों में डिवाइड हो जाता है तो एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। यदि केवल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 4 हिस्सों में डिवाइड नहीं होता, तो उसको हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। और यदि किसी भी हिस्से में बराबर डिवाइड ना हो तो उसको हम एसिमेट्रिकल या इरेगुलर कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक पाया जाता है आपको धतूरा में, सरसों में और मिर्ची में। जाइगोमॉर्फिक पाया जाता है कैसिया फेस्टोला अमलतास में, मटर में, गुलमोहर में और सेम में। और इरेगुलर पाया जाता है कैना में। ये याद रखना है आपको, ये पूछ लिया जाता है। फ्लावर सिमेट्री देख लीजिए, ये लगातार 4 भागों में विभाजित हो सकता है आसानी से, ये एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। ये केवल एक हिस्से से 2 बराबर भागों में बटेगा, इस तरह से विभाजन नहीं होगा, एक तरह से विभाजन होगा, इसलिए इसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक है और ये जाइगोमॉर्फिक के डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। आगे कल हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।